evening to everyone. Dear students, we welcome you all to this platform of Waves of Knowledge, which ultimately presents Waves of Happiness, a professional course e-series with personality enhancement series, conducted by ISKCON Mira Road. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. So let's start our day with a beautiful prayer. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं विहानानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे न धनं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति अहेतुकी त्वयि किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशीं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा
अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। After hearing such a melodious prayer, I request Ms. Pratnya Bhaskar to introduce our today's speaker. Hello everyone. I am pleased to introduce our today's speaker by His Grace Atul Krishna Das. Born in New Delhi, completed his schooling and college education in Mumbai in Science stream through Mumbai University and decided to dedicate his life for serving humanity by propagating the message of scriptures, and to fulfill that purpose, he took up the life of celibate monk and joined International Society of Krishna Consciousness ISKCON in Mumbai. After a few years, he moved to Belgaum, Karnataka and served for around 15 years. He took up the charge of new project in 2014 at ISKCON, Kawar, and served around 6 years, and currently he is preaching message of scriptures for more than 18 years. He is a teacher of Bhakti Shastri course and ISKCON discipline course. He is also famous for his Mahabharat and Ramayana discourses. His lectures of Srimad Bhagavatam are appreciated by devotee community. Currently, he is giving lectures on complete Bhagavatam and has completed up to 55 chapters of 10th canto. He also gives seminar on various topics like memory power, mind control, life after death, and concentration, etc. He has traveled to many places in India like Goa, Bangalore, Mumbai, Vrindavana, and also visits abroad like Kenya, South Africa, Zambia, etc. to deliver seminars as service to Lord Krishna and humanity at large. With this brief introduction about our wonderful speaker, we heartily welcome you, sir, and help us to learn more. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I'm very, very grateful to all of you for not just for attending this class, but for taking up this course. And I'm very happy that you are getting a blend of spirituality and
भाग्य है कि आप सबको आध्यात्मिकता और जो व्यवसायिक जीवन है उन दोनों का एक मिला जुला प्रशिक्षण मिल रहा है. You're getting a training based on spirituality and your professional career. And I'm sure most of you must be taking full advantage, full benefit of such good opportunity. I'm grateful to the organizers, CMC, who have organized ISKCON Mira Road, that they have thought of such a nice project and they are training all of you. In fact, just before I was coming here to give the class, I was sent some videos, some of you, how you like the course and how you like the spiritual environment. And I was very happy to see all those. Very, very grateful. Thank you very much. And today, what we are doing is a very important topic, leadership. And this will continue. It's not just a one lecture, it's a series, because we are going to discuss 8 attitudes of effective leader. तो ये आगे भी चलेगा. आज हम लोग शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे और फिर धीरे धीरे इन पर चर्चा करते जाएंगे. ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम एक अच्छे और एक सक्सेसफुल, सफल लीडर बने. आप में से कोई ये सोच सकते हैं कि हमें लीडरशिप को सुनने की क्या आवश्यकता है, हम तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए. सो व्हाई शुड बी हियर? यू आर गोइंग टू बी अ लीडर इन योर ओन वे. हो सकता है आप अपनी कंपनी के लीडर बने, आप अपने ग्रुप के लीडर बने, आप अपने घर के लीडर बने, समाज के लीडर बने. एवरी पर्सन in his own capacity is a leader. The only thing which we have to learn is how to be a good leader, perfect leader. So that is what we are going to learn today. आज हम लोग यही सीखने वाले हैं. I think so I was just explaining that why we need to understand about leadership, because each of you are going to be leader in your own way. आप में से हर कोई कहीं ना कहीं लीडर बनेंगे, कोई समाज का, कोई घर का, कोई अपनी कंपनी में, कोई ग्रुप का, हो सकता है आप में से कोई देश के भी लीडर बने. सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि लीडर तो सब होते हैं, मगर एक अच्छा लीडर कौन है या एक सही दृष्टि में लीडर कौन होना चाहिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. So what we will do is we will try to understand on a professional level how certain qualities help, and to get those qualities, what are the spiritual qualities required. Because unless you have a spiritual background, there is no question of becoming a very, very good leader. You can be very honest, but honesty begins by recognizing spirituality, by recognizing the power of God. Otherwise, you cannot be honest. Let me give you an example. There was a group of thieves, and this group, once they went and committed theft, and then they came together, they were sitting, सब आराम से बैठे थे, बहुत सारा कुछ लूट कर लाए थे, और उनके सरदार ने कहा कि ये सारी चीजें हमें बड़ी ईमानदारी से बांटनी चाहिए. हैं चोर और बात करते हैं ईमानदारी की. Similarly, if we want to be the leader, if we want to lead the country, if we want to lead the society or any other place, and if we do not go to spirituality from where everything is coming, सब कुछ जिनका है, so we will be like those thieves, talking of morality, talking of imandari, but then committing theft. So it is very important for all of us to understand the connection between spirituality and the professional life. So I'll share a PowerPoint with all of you,
and we will begin today's session. So yes, these are based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So as soon as we hear, जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारे मन में एक बात आती है कि प्रभुपाद क्यों? हाँ, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ले सकते थे, कोई बहुत बड़े नेता की बात कर सकते थे, कोई बहुत प्रसिद्ध कलाकार की बात कर सकते थे, तो फिर प्रभुपाद ही क्यों? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं इससे पहले कि हम प्रारंभ करें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये परफेक्ट लीडर हैं। कुछ लोग उन्हें एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उन्हें एक भक्त के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उन्हें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद इज द परफेक्ट लीडर। Let me give you some of his qualities by which you will know what are the qualities of a perfect leader. Like for example, he led by example. Srila Prabhupada, when he went to the West, he was about 70-year-old. 70 साल के थे जब वो पाश्चात्य जगत में गए, और उस समय उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, लेकिन उन्होंने अपने उदाहरण से लोगों को प्रेरणा दी। He led by example and he pioneered. Pioneered मतलब उन्होंने एक प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, और क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। जब वो यहां से जा रहे थे अमेरिका, तो उनके पास जाने के टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों रुपया, करोड़ों करोड़ों डॉलर्स का एक एम्पायर खड़ा किया। दिस इज अ लीडर। वो दिखला रहे हैं कि कैसे जीरो से आप लीडर बन सकते हो, इसीलिए सारे स्टेजेस उनकी लाइफ में हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक अमेजिंग कंपनी बनाई है। अमेजिंग कंपनी कैसी है ये कंपनी? सबसे पहला इसमें वंडरफुल बात, बड़ी अच्छी बात, अद्भुत बात है कि इसमें जो भी काम करते हैं वो अपनी प्रसन्नता से, खुशी से सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी में लोग अपनी प्रसन्नता से सुबह 4:30 बजे से लगकर 10 बजे तक काम करते हैं रात को? तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि हाँ तो ठीक है, उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी, तो फिर कोई भी कर लेगा काम। तो इसीलिए अमेजिंग कंपनी है कि सुबह 4:30 बजे से लेकर दुनिया भर में जितनी इसकी ब्रांचेस हैं उसमें सुबह 4:30 से रात को 10 बजे तक, और कभी कभी उससे भी देर तक लोग काम करते हैं, लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते, कोई सैलरी नहीं दी जाती। अमेजिंग कंपनी। और साथ ही साथ ये तो चल ही रहा है, और डिसिप्लिन इतना है कि एक ही समय में सारे जितने भी ब्रांचेस हैं इस कंपनी की, उसमें सब में एक ही रूल फॉलो होता है। इसे कहते हैं लीडरशिप। और साथ ही साथ केवल ऐसा नहीं है कि ही लेड बाय एग्जांपल, ही इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स। एक लीडर का जो आज हम लोग 8 अफेक्टिव एटीट्यूड्स डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें एक अफेक्टिव एटीट्यूड है टू मेक अदर लीडर्स। एक लीडर का, सक्सेसफुल लीडर का ये लक्षण, ये गुण है कि वो अन्य लीडर बनाता है। क्योंकि अगर वो लीडरशिप, समझिए अगर श्रील प्रभुपाद नहीं बनाते तो आज ये संस्था चलती नहीं। श्रील प्रभुपाद जब गए तो 108 ब्रांचेस थी, आज 600 के ऊपर हैं, और ग्रो हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने और लीडर्स बनाए उनकी तरह। और इतना ही नहीं, जितने भी उस समय के बड़े बड़े महान लोग थे, ग्रेट लीडर्स उस समय के, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक्सेप्ट किया। तो देखिए लीडरशिप क्वालिटीज, led by example, made an amazing company, made thousands of leaders, and not only that, other leaders appreciated him. Like the artist, Dr. T.D. Singh, and he was representing India in many science exhibitions or science conferences of the world. Very famous scientist. When he met Srila Prabhupada, and he was so impressed by his knowledge, he was so impressed by how Srila Prabhupada presents this scientific knowledge,
that he surrendered to him and became his disciple. So great leaders appreciate it, and that is why what we are speaking today is based on his teachings, because he led by example, pioneered a big movement and an amazing company which he has found. तो अगर हम शिल प्रभुपाद के उदाहरण से हम सीखें जीवन में तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। भक्त तो वो हैं ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ और हमें सिखलाया है। सो लेट अस बिगिन। आज शुरू करते हैं अभी हम लोग कि किस तरह ये जो सेमिनार है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो 8 एटीट्यूड्स में से पहला है पावर टू लिसन। आप लोग ये सोचिए कि हम इस सेमिनार्स के द्वारा आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो ट्रेनिंग क्या है, अगर आप उसको अच्छी तरह से लेते हैं तो जीवन में अच्छे लीडर आप बन सकते हैं जहां भी आप जाएं। जैसे आप में से कई लोग सीए का कोर्स कर रहे हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है, लेकिन हमने जब सीए शब्द सुना और एटीट्यूड्स की बात आई तो हमें लगा कि ये जो सीएज हैं ये परफेक्ट लीडर्स तब हो सकते हैं जब इनमें सीए हो। सीए मतलब केयरिंग एटीट्यूड। तो अगर केयरिंग एटीट्यूड है तो ये सही में लीडर्स हो सकते हैं। सो पहला जो हमारा आज हम लोग चर्चा करेंगे, फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ एन इफेक्टिव लीडर इज द पावर टू लिसन। हमारे में बहुत से लीडर्स में एक कमी होती है कि वो सुनते नहीं। जैसे हमारे राजनेता, वो आते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है, लोगों के से नहीं सुनते। पूर्व काल में जो राजा हुआ करते थे वो सुनते थे। हम लोग सुनते हैं कि राजा अपने वेश बदलकर जाते थे या किसी को भेजते थे, सुनते थे। रामचंद्र जी ने सुना, अन्य राजाओं ने सुना कि क्या क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, तो सुनते थे। तो power to listen is a very, very important attitude for a leader. We should develop this. And if you want to develop this power, what do you have to develop is patience. As I said, we are doing this course in 2 ways. One, helping you professionally, other, helping you spiritually. And if you have both, you will become successful. So patience is a quality by which you can develop a power to listen. And what happens if you have a power to listen? Let me tell you that also. If you listen to others, you allow others to express and grow. एक नहीं तो ऐसा होता है कि लीडर सोचता है मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, बस जो कहता हूं चुपचाप करो, तो आप अन्यों को बढ़ने नहीं दोगे, आप अन्य लीडर्स नहीं बनाओगे, आपके केवल सबऑर्डिनेट्स होंगे, यस सर बस, उनकी कोई बुद्धि नहीं होगी, वो कोई ग्रो नहीं करेंगे। जब आप सुनते हो तो आप दूसरों को एक्सप्रेस करने का अवसर देते हो। साथ ही साथ यू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड बिल्ड ट्रस्ट। लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल टू बिल्ड ट्रस्ट, एंड इफ यू हैव ट्रस्ट यू कैन बी अ गुड लीडर। सिंपल थिंग्स। You want to be a good leader, build trust amongst your teammates. And when you have trust, when you show respect, when you build this trust, you can do wonders. क्योंकि हमें ये सोचना है, एक लीडर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो टीम वर्क है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, फुटबॉल का मैच खेला जाता है। फुटबॉल के मैच में एक गोलकीपर होता है, कुछ बैक्स होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ फ्रंट होते हैं जो खेलते हैं। सो जो गोल है वो केवल फ्रंट्स पे जो खेल रहे हैं वो लोग मारते हैं, गोलकीपर गोल को बचाता है, बैक्स लिमिट में खेलते हैं। अब अगर गोलकीपर सोचे मैं ही जाकर गोल मार दूंगा तो चला जाए, और अगर बॉल मिस हो गई तो कितना हार जाएंगे। तो इसको कहते हैं टीम वर्क। और जब जीतता है तो सारी टीम को श्रेय जाता है। हम लोग कहते हैं इंडिया जीत गया, हम लोग ये नहीं कहते कि जिसने गोल मारा वो जीत गया। तो ये एक लीडर को समझना चाहिए। सो बाय लिसनिंग यू अलाउ अदर्स टू एक्सप्रेस एंड ग्रो, एंड यू बिल्ड ट्रस्ट। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, और साथ ही साथ आपको सूचना, यू गेन इंफॉर्मेशन।
A leader is supposed to decide, and you get the information by when you get information, you can take proper decision. And very important thing, जब आप सुनते हो तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हो. देखिए, आपके जीवन में आप जहां भी हो, चाहे आप घर के लीडर हो, चाहे आप समाज के लीडर हो, आप अपने ग्रुप के लीडर हो, आप अपनी कंपनी के लीडर हो, ये सारी चीजें बड़ी मदद करेंगी कि आप, क्योंकि आजकल लोगों के संबंध सबसे ज्यादा खराब होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से. आपने कुछ कहा, वो कुछ और बात पहुंची. आप लोगों को याद होगा, हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे कि एक सेंटेंस कोई बच्चा इसको कहता था, फिर वो दूसरे को कहेगा, फिर वो तीसरे को कहेगा, और जब तक एंड में आता था वो पूरा बदल जाता था. तो इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग. और ये आजकल के समाज में, आजकल के समय में सबसे बड़ा खतरा है. इसी के कारण सारे संबंध टूटते हैं, इसी के कारण सारी तकलीफें आती हैं. So you can avoid that misunderstanding just by listening. So listening is a very important aspect. सुनना चाहिए हमें. और वो होता है जब पेशेंस हो. जब तक पेशेंस नहीं है तब तक हम इसको लिसनिंग की पावर को नहीं ला सकते. और पेशेंस का अर्थ क्या है, यहां पर आप स्क्रीन पर एक बहुत सुंदर सेंटेंस पढ़ रहे होंगे. डोंट लीव द डॉक जस्ट बिफोर द शिप कम्स. आपको एक उदाहरण देते हैं. ये बहुत साल पहले की बात है, कई साल पहले. एक स्थान पर हम जानते हैं कि एक लड़की ने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया. बहुत साल पहले की बात है. ये उस समय की है जब ईमेल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, फैक्स पे काम होता था, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महंगे होते थे तो फैक्स आता था. तो इसने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, और क्योंकि उसके पास फैक्स नंबर नहीं था, उसने किसी और का फैक्स नंबर दिया कि जब आपको आएगा आप दे देना. उसने बहुत पब्लिसिटी की अपने बिजनेस की, लेकिन somehow बहुत समय करने के बाद भी कोई एक भी रिस्पॉन्स उसको नहीं आया. तो थोड़े समय बाद में वो निराश हो गई. उसने सोचा कि अब ये तो होने वाला नहीं है. तो फिर उसने क्या किया, वाइंड अप कर दिया. उसने कहा कि ये सब नहीं होना है, वाइंड अप कर देते हैं. सो वाइंड अप हो गया और वो चली गई. जब वो चली गई, जस्ट उसके एक हफ्ते बाद से जिस नंबर पर फैक्स दिया था, उस व्यक्ति को दिन में 5, 6, 7 फैक्स आने लगे हर रोज, रिस्पॉन्स के, एक्सपोर्ट्स के लिए, कुछ इंक्वायरी के. अब वो उसके पास था नहीं, इस समय तो था नहीं कि मोबाइल उस समय कुछ भी नहीं थे, तो वो संपर्क ही नहीं कर पाया. तो अगर वो थोड़ा समय और इस पेशेंस को बनाए रखती कि ठीक है होगा, तो फिर बहुत आसानी से हो सकता है कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन जाती, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस करती, लेकिन पेशेंस नहीं रहा. सो वी हैव टू डेवलप दिस क्वालिटी. एंड पेशेंस का उदाहरण हमें मिलता है भगवद गीता में. पहले ही अध्याय में इस क्वालिटी को भगवान डिस्प्ले कर रहे हैं. देखिए, भगवद गीता ये कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि आप उसको ऑल्टर में रख दो, अगरबत्ती दिखाओ रोज कि हाँ बस हो गया. नहीं, भगवद गीता इज ए मैनुअल ऑफ लाइफ. पहला अध्याय पेशेंस सिखलाता है, और वो भी किसके द्वारा? स्वयं कृष्ण के द्वारा. कैसे पेशेंस हुआ, और ये पावर ऑफ लिसनिंग, ये दोनों चीजें हम पहले अध्याय में देखते हैं. कैसे? अर्जुन बहुत सारे कारण दे रहे हैं. अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण से कहा कि मेरा रथ लेके चलिए दोनों सेनाओं के बीच में. क्यों? मैं देखना चाहता हूं. अच्छा, क्या देखना चाहते हो अर्जुन? मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन खड़े हैं युद्ध के लिए. तो भगवान ने कहा ठीक है, ले गए. तो अर्जुन ने देखा वहां पर, अरे मेरे पितामह हैं, अरे मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, अरे ये मेरे संबंधी हैं. अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए. मैं इन सबको मारूंगा, ये सब मारे जाएंगे. अर्जुन एकदम दुखी हो गए, और अर्जुन ने उस समय भगवान को बहुत सारे कारण दिए. भगवान किसको कारण दे रहे हैं? वो श्री कृष्ण को, जिन्हें सारा ज्ञान है, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं,
उनको अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे बिल्कुल नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा युद्ध करने से पाप लगेगा, कृष्ण चुपचाप सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि ये केवल भूमि के लिए हम युद्ध करेंगे और भूमि मिलेगी तो इनके खून से सनी होगी, मुझे ऐसी भूमि नहीं चाहिए। भगवान सुन रहे, बड़े ध्यान से बोलते रहो। पूरे अध्याय, पहले अध्याय में कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। सोचिए 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक केवल। अर्जुन को तुरंत रोक देना चाहिए था कृष्ण को, अर्जुन बस बस रुको, मैं बताता हूं क्या करना है। भगवान सुन रहे। तो लीडरशिप की क्वालिटी हम कृष्ण से सीख सकते हैं, परफेक्ट लीडर। तो वो दिखला रहे हैं भगवत गीता में, पावर टू लिसन एंड पेशेंस। बड़े आराम से सुन रहे हैं। अर्जुन कहता गया, बहुत सारे कारण दे दिए, पाप लगेगा, समाज में क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। भगवान सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी प्राय 5-6 श्लोकों में अर्जुन बोलता गया, भगवान सुन रहे हैं। फिर जब अर्जुन खुद ही कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आया मैं करूं क्या, तो उस समय उसने भगवान से कहा, कार्पण्य देशोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वं प्रपन्ना। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं इतना सब मैंने बोल दिया, लेकिन दरअसल मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है, आप बताइए मुझे क्या करना। उसके बाद जब अर्जुन ने कह दिया तब भगवान ने बोलना शुरू किया। तो इसको कहते पेशेंस, इसको कहते पावर टू लिसन, और ये क्वालिटी कृष्ण दर्शा रहे हैं। तो सोचिए कितना प्रारंभ भगवत गीता का भगवान ये क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, पेशेंस। तो इसीलिए पहली क्वालिटी, पहला एटीट्यूड है, और इसमें मदद करता है। अगर हम ये पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं, आप लोग जब ये सुन रहे हो तो अपने अंदर झांक कर देखिए कि है पेशेंस, ये पावर टू लिसन है। क्योंकि जब कोई दूसरा बोलता है तो हमें लगता है मुझे ज्यादा पता है, इसको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। या हम किसी को सुनते भी हैं तो केवल ये देखने के लिए कि ज्यादा बोले नहीं, बस हम उसके लिए सुन रहे हैं दूसरे का, तो ये भी ठीक नहीं है। तो कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं और वो बोलता रहता, हम बस इंतजार करते कभी चुपो हम बोल दें। नहीं, पावर टू लिसन मीन्स उसको सुने, हो सकता है उससे अच्छी चीजें हमें पता चले, और इसके लिए पेशेंस। और पेशेंस डेवलप करने के लिए आध्यात्मिकता में ध्यान, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। व्हेन यू मेडिटेट यू डेवलप दैट पेशेंस। आप में से कुछ लोग निश्चित कर रहे हैं, but meditation is a very, very powerful way of developing this patience. You develop that quality. So meditation should be done. That's the first effective way of reaching to the top of leadership excellence. तो 8 एटीट्यूड में से पहला है कि हम पावर टू लिसन डेवलप करें, सुनना शुरू करें, केवल सुनाए नहीं। और उसमें मेडिटेशन बहुत मदद करता है। आप में से जिन लोगों ने प्रारंभ किया है, जो विद्यार्थियों ने, सो आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि बहुत अच्छी तरह से ये मदद करता है। सो दैट्स अ पावर टू लिसन। ओके, सो देन वी विल गो ऑन टू द सेकेंड क्वालिटी। आई हैड टोल्ड यू कि आपको इसमें किसी में भी आपको अगर कोई प्रश्न होगा, then you can write it. Right now also, as you get, you can write on the chat box, and after the session we will definitely take, I'm sure there will be a lot of questions, so we will definitely take all the questions. Okay, so let's go for the second attitude. हम वैसे इसमें थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं, एक एक एटीट्यूड को बहुत विस्तार से नहीं समझा रहे हैं, बिकॉज जो सेशन का टाइम है हमारे पास, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि 8 एटीट्यूड कवर कर लें। सो इसीलिए कोई भी आपको इसमें प्रश्न होंगे तो इसके बाद में आप पूछ सकते हैं। द सेकेंड एटीट्यूड which a leader should develop is availability. He should be available. कभी कभी जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाते।
They are not available. No, leaders should be available. For your team members, be available. आपके जो भी आपके टीम में हैं, आपके दल में हैं, आप जिनको भी लीड कर रहे हैं, उनके लिए अवेलेबल रहिए. और ये क्वालिटी आती है, ये अवेलेबिलिटी का भाव आ सकता है जब हम ह्यूमिलिटी डेवलप करते हैं, नम्रता. इसको डेवलप करना चाहिए. एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है. हम सोचते हैं लीडर मतलब जो केवल ऐसे खड़ा रहकर आदेश देता, ये करो ये करो ये करो. हमारे मन में लीडर की एक इमेज है, लेकिन ये समय वो नहीं है. ये समय है जहां लीडर ऐसे होना चाहिए. उसको लीडर कहा गया है. लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय सर्विंग अदर्स, डेवलप दैट मूड ऑफ सर्विंग अदर्स, यू विल बी द परफेक्ट लीडर. एंड प्रभुपाद ने दिखलाया ये करके. सो बी अवेलेबल. और अवेलेबल कब हो गए आप? जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी है. सो ह्यूमिलिटी के द्वारा यू कैन बी अवेलेबल फॉर, easily available for your team members. So बहुत समय पहले हमने एक मैनेजमेंट की बुक पढ़ी थी. आई एम श्योर आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने उसको पढ़ा होगा. दिस वाज द बुक फिश. आई डोंट नो कितने लोगों ने आपने पढ़ा. अगर आप बुक्स पढ़ते हैं कुछ मैनेजमेंट की, तो ये फिश बहुत सुंदर बुक थी. इसमें बताया गया था एक ऐसा, ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्शन. तो एक लेडी है जो किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस के एक फ्लोर पर काम करती है, और उसको एक दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया जाता है, जो फ्लोर बदनाम फ्लोर है, जहां लोग काम नहीं करते हैं, लेजी हैं, कोई काम नहीं होता है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, और उस फ्लोर पर उसको बॉस बनाकर शिफ्ट कर दिया जाता है. तो पहले 2 दिन तो वो देखती है और इतनी परेशान हो जाती है कि वो रोना चाहती है, लेकिन रो नहीं पाती. क्या करे, ऐसी स्थिति में है. तो उसमें वर्णन है, ऐसे तो विस्तार से बुक है. तो इन दैट इट इज सेड दैट बिकॉज शी इज सो डिस्टर्ब, शी जस्ट गोज आउट. बाहर जाती कुछ थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए कि क्या करें. तो चलते चलते एक फिश मार्केट में पहुंचती है, और वहां देखती है कि वहां पर बहुत एनर्जी है, लोग बड़े खुश हैं फिश मार्केट में. एंड देन शी लर्न्स अ लॉट फ्रॉम देयर. तो पूरा बुक है. तो उसमें ये जो अवेलेबिलिटी का फैक्टर है वो बताया गया है कि अगर हम अवेलेबल रहते हैं तो क्या कर सकते हैं. हम अपना एटीट्यूड चूज करते हैं. हम उनका यू मेक योर देयर डे just by being present. So you should be present there. And humility has to be developed for a leader. What is humility? Humility means we should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. लीडर हो गया हूं, सब मेरा आदर करना चाहिए. अगर ये भावना है तो फिर आपके अंदर नम्रता नहीं आ सकती. You have to develop humility. और कैसे ह्यूमिलिटी डेवलप करेंगे? जब आप आध्यात्मिकता से कनेक्ट होते हैं. बिकॉज व्हेन यू ग्लोरीफाई योरसेल्फ, प्राइड कम्स. व्हेन यू ग्लोरीफाई लॉर्ड, ह्यूमिलिटी कम्स. सिंपल थिंग. प्राइड इज अबाउट माय ग्लोरी, ह्यूमिलिटी इज अबाउट लॉर्ड्स ग्लोरी. So wherever, whichever religion you belong to, whatever you practices you follow, glorify Lord. That is very important. So you have to be humble. Now you will say, humility doesn't work in business world. What you're talking of humility? Let me give you some example. How it works in business world. I'll give you some example. There's a very famous example of Abdul Kalam, the former president of India. And this story was very favorite of his. He narrated it many times. And I'm touched by this story. And so I also like to repeat this. This is about humility. A very wonderful story. Abdul Kalam was in charge. He was a director of a space program. This was in Sriharikota, where right now there is a big center. So he was in charge, and his boss, the overall in charge, the director of that place was Mr. Satish Dhawan. Now this is a very nice incident. I'm not going in detail. I'll just describe you the brief incident, what happened. So they were about to launch the satellite. Or Mr. Abdul Kalam was explaining that when they launched the satellite, just
10 minutes before the launch or 10-15 minutes before the launch, everything is handed over to the computer. No manual thing are done, because he says lot of things are to be checked, which is not possible to be checked by manually. So it is handed over to computer. And if computer projects some problem, then whole thing can be stopped. So he said he was in charge, Abdul Kalam, and the time came for launching, and just few seconds, you can say, or a minute, 2 minutes before, 2-3 minutes before, the computer started giving signal. It cannot be launched. There is some problem. So immediately they detected what is the problem. So he discussed with his members, what should be done? He said, sir, you take a call. So he looked at it and he said, no, we'll go ahead. Stop all the computers, do it manually. So they stopped the computers, they launched it manually. And as soon as they launched, it went up and then in the sea. Disaster. Crores of rupees of people of India went into the sea. अब आप सोचिए, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस वाले तो बहुत ग्रिल करने वाले हैं अब्दुल कलाम को या जो भी इंचार्ज हैं। अरे आप लोगों ने भारत का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, ये क्या किया, वो क्या किया। तो सुबह का समय था, अब्दुल कलाम के, तो वैसे वो बहुत डिस्टर्ब थे, रात को सोए नहीं थे। सुबह के समय मिस्टर सतीश धवन उनके पास आए। अब देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ, सतीश धवन वहां थे ही नहीं, लेकिन सतीश धवन उनके पास आए, अब्दुल कलाम से कहा चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। अब्दुल कलाम तो तैयार थे कि इतना सुनना पड़ेगा, इतना सुनना, क्या जवाब देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और स्वाभाविक है, प्रेस रिपोर्टर्स ने बोलना शुरू किया कि अरे इतना कैसे आपने किया, ये क्या किया वगैरह। तो उस समय वो बताते अब्दुल कलाम कि हैरानी की बात, ही से मैंने देखा कि लीडर क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि सतीश धवन, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने ये नहीं कहा ये बैठा है अब्दुल कलाम, देखो मारो इसको, पकड़ो इसको। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमको 2 साल का समय और दीजिए, हम लॉन्च करके दिखाएंगे। तो पूरा और बोल्डली उन्होंने फेस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हर एक प्रश्न को। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वहां था ही नहीं, ये तो इसकी गलती है। उन्होंने फेस किया। अब्दुल कलाम ने देखा, बोले ये लीडर है। और उसके बाद बोलते यहां रुका नहीं उनका लीडरशिप का क्वालिटी, अब ह्यूमिलिटी का देखिए। समय आया जब वो लोग फिर से लॉन्च कर रहे हैं, और इस बार सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, बहुत सक्सेसफुल। दुनिया भर तारीफ करेंगी कि इंडिया ने इतना बड़ा काम कर दिया भारत में। तो सारे फिर से अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर से मिस्टर सतीश धवन आए इनके पास। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो गए नहीं सतीश धवन। अब्दुल कलाम कहते ये लीडर है। बोले मैं आई वाज सो टच्ड बाय इट कि जिस दिन जब ब्लेम्स आने थे, ही वेंट अहेड, उन्होंने सारे ब्लेम्स लिए। लेकिन जहां अब प्रेजेस आने हैं, लोग गुणगान करने वाले हैं, यस यू हैव डन अ वंडरफुल थिंग, नोबडी कैन बीट इंडिया नाउ, you have brought pride to India, said you go and take all the praises. So this is called humility. इसीलिए ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नेताओं में, बड़े बड़े लीडर्स में ह्यूमिलिटी नहीं हो सकती, होनी चाहिए, and that makes them a good leader. देखिए, भारत के प्रेसिडेंट होते हुए अब्दुल कलाम याद उनको करते थे कि वो लीडर थे। फिर आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट रतन टाटा, the most respected industrialist at this time in India. So भारत में बहुत respected industrialist हैं वो, रतन टाटा। उनकी ह्यूमिलिटी क्या है? आप ये जो 2 पिक्चर यहां देख रहे हैं, इनमें उनकी ह्यूमिलिटी आपको दिखाई देगी। रतन टाटा, when he doesn't travel by his own plane or when he generally travels by some airlines, he travels in an economic class. तो आप सोचिए कि कौन है वो, प्लेन्स उनके हैं, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं नॉर्मल करते हैं। दूसरी पिक्चर में आप देखिए, वो अपने एम्प्लॉइज के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, और वो कहाँ बैठे हुए हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके लिए सोने की चेयर आनी चाहिए थी, उस पर बैठे हैं, उनका है इतना।
This is his humility. और भी बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे प्रसंग हैं. Lot of incidents where we can see how humble he is. So humility brings respect. So if you really want, the first quality was, which we discussed, was power to listen, develop patience. And I said that comes when you start meditating, dhyan karte hain. Second quality which we are discussing here is humility. Be available. You are available for your people. So you have to be humble. Humility. शास्त्रों में भी विशेष करके रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है. हनुमान जी क्रॉस कर रहे हैं लंका जाने के लिए, समुद्र पार कर रहे हैं और बीच में एक राक्षसी आ गई, सुरसा, और उसने अपना मुंह खोल दिया. उसने कहा कि जब तक मेरे मुंह में प्रवेश नहीं करोगे तुम जा नहीं सकते. हनुमान जी ने कहा अभी नहीं, मैं जल्दी में हूं, आकर जाऊं, आने के बाद आपकी इच्छा पूरी करूंगा. बोले नहीं, जा नहीं सकते. हनुमान जी ने बहुत कहा, नहीं सुना. तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा कर लिया, हनुमान जी भी बड़े हो गए. सुरसा और बड़ा कर लिया, हनुमान जी और बड़े हो गए. सुरसा ने और बड़ा कर लिया, हनुमान जी और बड़े हो गए. सुरसा का मुंह पानी से लेकर आकाश तक इतना बड़ा हो गया, हनुमान जी भी इतने बड़े थे, और अचानक हनुमान जी छोटे से हो गए इतने से, और सीधे उसके मुंह में अंदर गए, बाहर निकल आए. वो देखती रह गई, इतना बड़ा मुंह जब तक बंद करे. हनुमान जी टाटा बाय बाय करके निकल गए. तो हनुमान जी क्या दिखला रहे थे? हनुमान जी दिखला रहे थे कि ये हमारा जीवन है. जब दो लोगों के बीच में कुछ झगड़ा होता है, मतभेद, सम आर्ग्यूमेंट, सम थिंग्स, सो एवरीवन वांट्स टू प्रूव आई एम ग्रेट. दैट इज लाइक सुरसा, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ. So everyone wants to prove I am right, I am great. But a leader is one who takes a humble position. Hanumanji is teaching that what is important is your goal. It is not important how you are fighting with this person now. You will miss the goal. हनुमान जी का गोल था सीता को ढूंढना, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे. तो इसीलिए बहुत सुंदर संदेश हमें वो देते हैं कि in our life when we face such situation where we have to we are facing such people who are very arrogant, you can kill their arrogance by your humility. Humble, नम्रता से आप उनको परास्त कर सकते हो. इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो नम्रता है उसको उत्पन्न करें. और ये नम्रता कैसे आती है? How do you develop humility? By knowledge. Srila Prabhupada used to give a very nice analogy. He used to say, you see a tree which doesn't have fruits. एक पेड़ जिसमें फल नहीं लगे हैं वो सीधा खड़ा रहता है, लेकिन जिसमें फल लग जाते हैं वो झुक जाता है. So humility is a very, very important attitude for a successful leader, and it comes by knowledge. Knowledge means to know who you are. Knowledge just doesn't mean that you know how this machine works. In this world, we are taking knowledge, how car works, how the machine in the factory works. But this machine, this body, this is also a machine. We are not concerned how is it working, who is helping. Okay, by medical science, you will know certain thing, it works like this. But who gives that power? Who has put these systems already in place? Knowledge means to know who you are. That is the real knowledge. You may know every other thing, but who you are. जब हम कई जगह पर जाते हैं, हमें बच्चे मिलते हैं, हम बच्चों से पहला प्रश्न करते हैं, क्या नाम है आपका? बच्चे कुछ नाम बताते हैं. हम बच्चों को पूछते हैं, अच्छा आपके नाम का अर्थ क्या है? बच्चे को पता ही नहीं होता. देखिए, अधिकतर ऐसा होता है. We do not know the meaning of our name, and this is what is happening with us. We are like those kids who do not know the meaning of our life, the purpose of our life. Why are we living? So knowledge means what? ज्ञान का अर्थ क्या है? बहुत सरल. पहली चीज, हम कौन है ये जानना. दूसरा चीज, हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ में, पर्पस क्या है. हम तो यही सुनते आए हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लो, पढ़ाई करो,
जॉब करो, शादी करो, बच्चे उत्पन्न करो, फिर एक दिन मर जाओ, खत्म। लोग आकर हाथ चढ़ाएंगे, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा हुआ मर गया, कुछ कहेंगे अरे नहीं अच्छा हुआ, जीवन खत्म। क्या यही उद्देश्य है हमारे जीवन का? बस इसके लिए हम सारा करते रहते हैं। मतलब हम सारे जीवन में अपने शरीर को धक्का मारकर मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके लिए हमारा जीवन नहीं हो सकता। इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, इतना टैलेंट भगवान ने दिया है, इसलिए उसको हमें सोचना। तो वो कैसे पता चलता है? ज्ञान से। भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया। भगवत गीता क्या है? ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, तो उस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। तो ज्ञान कहां से लें? ज्ञान लें भगवत गीता जैसे ग्रंथ से। अच्छा, भगवत गीता क्या किसी एक धर्म के लिए है? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता में जो सिद्धांत दिए हैं, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। Like the gravitational force is a universal principle. Can we say that gravitational force is applicable to Hindus but not to Muslims, or not to Sikhs, or not to Christians? It's applicable to everyone, whatever religion you belong to. How does it matter? Similarly, Bhagavad Gita is applicable to everyone. Doesn't matter which religion you belong to. There are universal principles in Bhagavad Gita, and one of them is to develop humility through knowledge. So what knowledge should we take? First thing, who are we? हम कौन हैं? हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन का? खाना पीना सोना, या इससे परे कुछ और? So that is the second thing. And the third thing, what is our final destination? हमें यही ज्ञान नहीं है, हम कैसे जीवन जिएंगे? आपको ऐसे एक बार एक व्यक्ति आया, तो एक देखा गाड़ी चला रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। तो उसको पूछा भाई क्या, कहाँ जा रहे हो? बोले वो तो पता नहीं, बस मैं गाड़ी चला रहा। तो अगर हमें जीवन का उद्देश्य नहीं पता, वी डोंट नो व्हाई आर वी लिविंग, वी डोंट नो द पर्पस, हम उसी तरह हैं, गाड़ी चला रहे हैं बस तेजी में, स्पीड में, ना तो हमें गाड़ी चलाना पता है। देखिए भगवत गीता क्या बताती है? भगवत गीता हमें सबसे पहले बताती है कि आपकी गाड़ी कैसे आपको चलानी है। आपकी गाड़ी है, आपको गाड़ी कैसे चलानी है और गाड़ी के द्वारा कहाँ पहुंचना है। अगर नहीं पता हो कैसे चलाना है तो क्या होगा? एक बार एक आदमी गाड़ी लेकर आया, बड़ी तेजी से इधर जा रहा था, उधर से, और बीच बीच में चिल्ला रहा था। जो सामने एक व्यक्ति खड़ा था उसको देख के चिल्लाता था। तो ये व्यक्ति को जरा गुस्सा आ रहा था, अरे क्या दिखा रहे हो कि नया गाड़ी लाए हैं तो इतना क्यों चिल्ला रहे? फिर इधर जाता चिल्लाता। थोड़े समय बाद उसने जाकर जो कार थी एक पेड़ में उसको ठोकर मार दी। तो जब ठोकर मारी, ये व्यक्ति ने जाकर पूछा भाई क्या बात है, इतना तुम ऐसे जा रहे थे ठोकर मार दी क्या? बोले अरे मैं पूछ रहा था आपसे कि आपको पता है कि इसमें ब्रेक कहां पर है? उसको ब्रेक नहीं पता था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता नहीं कि ब्रेक कहां लगाना है। हमें लगता है कि बस ये अचीव हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा। आप पूछिए उन लोगों को जिन्होंने अचीव कर लिया, क्या वो सुखी हैं? इसीलिए सच्चे ज्ञान को लेना चाहिए, भगवत गीता के ज्ञान को, जहां हम इन चीजों को, इन तीन चीजों को समझिए, जीवन का परफेक्शन उसमें आएगा। हम कौन हैं, हमें क्या पर्पस है, हम लोग कैसे रहें और कहां हमें जाना है, बस इसको हमें सीख लेना है। गाड़ी कैसे चलानी है और गाड़ी से कहां पहुंचना है। तो इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। So knowledge helps a lot. One should take the knowledge. So the third attitude, should we go? Or I think we're already reaching around 6 o'clock. Or to take the third attitude, we'll take it tomorrow, but let me just complete the knowledge part. कभी कभी नॉलेज होता है, उसका कंक्लूजन नहीं पता होता, उसका कंक्लूजन सही नहीं होता। जैसे हिरण्यकश्यपु का उदाहरण आता है शास्त्र में। हिरण्यकश्यपु के पास बहुत ज्ञान था, वो जानता था हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो जानता था सब कुछ भाग्य से होता है, कर्मों का नियम जानता था, लेकिन उसका कंक्लूजन रॉन्ग था, उसके द्वारा वो जीतना चाहता था। सो हमारे लिए कंक्लूजन सही चाहिए, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, उसको समझना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए।
एक आपको छोटी सी स्टोरी बताकर आज समाप्त करते हैं। एक बार कुछ पक्षी रहते थे ऊपर पेड़ के ऊपर, उस नीचे एक साधु बैठा करते थे, साधु रहते। तो साधु ने सोचा बहुत समय हो गया, तो वो किसी और स्थान पर वो सोच रहे थे जाएंगे, जाने लगे। तो पक्षियों ने कहा कि महाराज आप इतना समय यहाँ रहे, थोड़ा कुछ देकर जाइए हमें। तो साधु ने कहा ठीक है, एक मंत्र देकर जाता हूँ, इस मंत्र को याद रखना। और मंत्र था, आप सबने सुना होगा कई बार, ये मंत्र था, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। मतलब इसको याद कर लो, कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को याद करा दिया। सब छोटे बच्चे पक्षी के सब सुबह शाम एक ही मंत्र बोलते हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। एक दिन ये जो दोनों पक्षी थे कहीं चले गए, बच्चे अकेले थे। शिकारी आया, शिकारी ने नीचे जाल फैलाया, दाना डाला, बच्चों ने देखा और बच्चों ने कहा शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और फिर नीचे आए दाना खाने के लिए, फंस गए जाल में। शिकारी ने उनको ऐसे सब लिया, ऐसे पीठ पर टांगा और चल रहा है। और जब वो जा रहा है तब भी वो लोग अंदर बैठे यही मंत्र कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। तो ये है कि ज्ञान है लेकिन उसका विज्ञान, उसका एप्लीकेशन नहीं है लाइफ में, कंक्लूजन सही नहीं कि जिस ज्ञान को हम लें उसको ठीक से अप्लाई करें। तो इसलिए आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक लीडर के लिए बहुत आवश्यक है कि वो, नहीं तो बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं हमारे ऊपर। अभी हम लोग नेक्स्ट इस पर चर्चा करेंगे कि अभी तो हमने चर्चा की कि पावर टू लिसन, हमने चर्चा की कि किस तरह हमारे पेशेंस होना चाहिए, फिर हमने कहा अवेलेबिलिटी। लेकिन अब आएगा आगे एक हमारा एटीट्यूड कि कभी कभी बहुत प्रेशर आते हैं, वर्क प्रेशर आ जाता है, लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, घर में से प्रेशर आते हैं, लोगों की आशाएं बहुत बड़ी हुई हैं। तो कैसे उस सबको हैंडल करें, कैसे वो वर्क स्ट्रेस, वो प्रेशर कैसे हैंडल करें, अभी आगे हम लोग उसको, खास करके लीडर के रूप में, क्योंकि लीडर के रूप में प्रेशर क्यों ज्यादा आता है, जिम्मेदारी है। अन्य लोग जो भी कुछ हुआ लीडर पर डाल देंगे, हमारी गलती नहीं, वो जाने। लेकिन लीडर के रूप में बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। तो कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल करें, मन कष्ट देता है, क्रोध आ जाता है, एंगर आ जाता है, तो हम इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now I will invite Ms. Priyanka Gupta to propose a vote of thanks because no duty is more urgent than that of returning thanks. Showing gratitude is one of the simplest yet the powerful things that human can do for each other. I consider it as my great privilege to extend a very big thanks to His Grace Atul Krishna Das Prabhuji for providing such an eloquent speech on the topic and also explaining it with various examples, stories, and linking it with the spirituality. Your esteemed presence at this session is a great blessing for all of us. And because learning and implementing the qualities of a leader is the need of an hour in this highly competitive world. So we are very much grateful for you for explaining us this topic in a very effective manner. Also, I would like to mention some qualities which you mentioned of the leadership, which are first, the power to listen, which that is patience, which can be developed by meditation. And the second is availability, which is humility, and it can be attained by knowledge. And you also mentioned that knowledge is just not taking, it's applying it at the correct place is also important for all of this. So we are very grateful to you. Also, we'll be awaiting for your further session. We are also grateful for CMC ISKCON for providing their platform whose growth and glory we all are enjoying it. And my wholehearted gratitude goes to our well-wishers, that is the CMC directors, for
upcoming this idea of converting confusion to consciousness among youth. And I would like to acknowledge the untiring efforts of our most valued CMC champions who are working on screen and behind to make this event